हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू सिंगल स्लिट, बच्चों ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोस में कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन को बहुत ब्रीफली लर्न किया है। सो इन टुडेज क्लास अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ओनली, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव सम रिजल्ट्स एंड विच आर वेरी यूजफुल। सो बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल स्लिट ए बी कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ सिंगल स्लिट ए बी and this is a screen, and it is better we draw the screen at some large distance from the slit AB. So this is a rectangular slit AB, small slit, and this is representing screen. Now we are considering one point source of light, and this is monochromatic source of light. So this will produce light in all the directions. So suppose we are keeping this source of light, monochromatic source of light, at the focus of this lens, at the focus of this convex lens. This is a convex lens, and this one we are representing by L1. So suppose we are dividing this into two parts. In this way the light ray will go in all directions. So as we know from the rule of image formation through convex lens, कोई भी रेस अगर फोकस से आता है, suppose we are considering this source is at focus of this lens. So if any rays is coming through focus, then after refraction it will pass parallel to the principal axis. So these are forming parallel rays. So बच्चों, हमें पता है, we know parallel rays क्या फॉर्म करता है, they are forming plane wave front. They are forming plane wave front. These are parallel rays or beam of light. So they are forming plane wave front. They are forming plane wave front, and by the time this plane wave front will be incident on the slit AB, since this is plane wave front, PW stands for plane wave front, plane wave front. This is representing plane wave front. So यह जो plane wave front है बच्चों, यह slit AB पर incident होगा, and this will be जो slit का हर एक पॉइंट है, each and every point of slit AB now will act as secondary source, or the secondary wavelets will be produced or spread out in all the directions from the slit AB, और सभी एक ही टाइम पर स्टार्ट होगा और इन फेज स्टार्ट होगा. So all the points of this slit AB will act as source of secondary wavelets, and those wavelets will spread out into this region between the slit and screen in all the directions. So let us consider, और बच्चों हमने यहाँ पर ऐसा कंसीडर किया है कि ये जो स्क्रीन है ये स्लिट से लार्ज डिस्टेंस पर है. So if this is at large distance, then in order to get the diffraction pattern or focused diffraction pattern, we have to use converging lens, or we have to use convex lens in between the slit AB and the screen. Suppose we are considering this one as optical center, and again we are dividing this lens in two parts so that we can draw the refracted light. बच्चों, अब यहाँ से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं B पॉइंट से एक वेवलेट जा रहा है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विद दिस सेंट्रल लाइन, और इस पॉइंट को O कह रहे हैं. यहाँ से जो वेवलेट होगा बच्चों B पॉइंट से, थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम अलग से एक और पैरेलल में डायग्राम यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ. ये सारे पॉइंट्स है बच्चों. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज स्लिट AB. AB इज स्लिट, AB इज अ स्लिट. जैसे ही यह प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्लिट विल एक्ट एज सेकेंडरी, एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, एंड दोस सेकेंडरी वेवलेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द डायरेक्शंस. बच्चों, यह एक पॉइंट सोर्स की तरफ एक्ट करेगा, और यहाँ से वेवलेट से सभी डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ भी, इधर भी जाएगा. ये जो ए पॉइंट है यहाँ से भी इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, बी पॉइंट से भी जाएगा. सभी पॉइंट से बच्चों इस तरह से लाइट रे यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स इधर भी जाएगा, इधर भी और इधर भी. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो, दिस वे
this way, this point also the same. So this is how the secondary wavelets will be produced from each and every point of the slit AB in all the directions. बच्चों अगर हम बात करें थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर जो वेवलेट्स जा रहा है, केवल उनको यहाँ पर एक गया, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन मोर लाइक दिस, और यहाँ से सभी पॉइंट से इस तरह से वो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स जो केवल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, हम उसकी बात एट ए टाइम कर रहे हैं. सो वी आर कंसिडरिंग दोज वेवलेट्स विच आर गोइंग एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. सो हाउ दे विल गो लाइक दिस. यहाँ से देखिए लाइक दिस, दिस इज ए एंड बी पार्ट ऑफ द स्लिट. सभी पॉइंट से इस तरह से लाइट रे जो है जाएगा. दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू टू सेकेंडरी वेवलेट्स एंड दीज आर रिप्रेजेंटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स. और सेकेंडरी वेवलेट्स जो स्लिट ए बी है, इस स्लिट से सभी एंगल पर जाएगा, लेकिन हम अभी एट ए टाइम फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर जो सारे वेवलेट्स जा रहे हैं बच्चों, हम उनको कंसीडर कर रहे हैं. सो द फर्स्ट केस वी आर कंसीडरिंग केस 1 when diffraction angle थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. जब हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कंसीडर किया है तब की बात कर रहे हैं. सो जो भी, अच्छा डिफ्रैक्शन एंगल क्या है बच्चों? डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट. जब स्लिट ए बी से ये क्रॉस किया तो जो सारे वेवलेट्स स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, हम अभी एट ए टाइम उसी को कंसीडर कर रहे हैं. केस बाय केस हम लोग बच्चों स्टडी करेंगे. जब थीटा 1 कंसीडर करेंगे, थीटा 2, थीटा 3 डिफरेंट एंगल्स हो सकता है. दिस केस वी आर कंसीडरिंग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ओनली, राइट. सो यहाँ से एक लाइट रे जाएगा इस तरह से, एक लाइट रे इस तरह से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा और बीच के सभी पॉइंट से जाएगा. एट ए टाइम बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो स्लिट है, ए से जो वेवलेट जा रहा है वो इस तरह से यहाँ पर आएगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू दिस वे. अगर स्क्रीन को बच्चों, इफ यू हैव प्लेस्ड द स्क्रीन एट द फोकस ऑफ दिस लेंस और इन द फोकल प्लेन of this lens, then this O point will be the focus of this lens, and this O point, at this O point यहां से A से जो वेवलेट आएगा वो यहां पर मिलेगा, जो B से वेवलेट आएगा वो यहां पर मिलेगा. सो अगर हम इस दोनों पॉइंट से देखें, यहां से जो वेवलेट जा रहा है और यहां से जो वेवलेट जा रहा है, दोनों का पाथ लेंथ तो सेम है बच्चों. व्हाटएवर लेंथ AO that is equal to BO, पाथ लेंथ इज सेम. सो अगर हम इसे प्लॉट करें, यहां पर इसको मिटा रहे बच्चों. सो ये जो वेवलेट है, ए से जाने वाला वेवलेट वो इस तरह से है. दिस इज वेवलेट फ्रॉम ए रीचिंग एट O and this is wavelet from B reaching at O after passing through converging lens. So यह भी इन फेज ही है, दोनों एट ए टाइम स्टार्ट हुआ है. What is phase difference between the two wavelets which are going from A and B? पाथ लेंथ तो दोनों का सेम है, पाथ लेंथ सेम, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों? पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेवलेट. सो पाथ डिफरेंस between two wavelets from A and B will be 0. That is delta x upon lambda equal to delta phi upon 2 pi. So this delta x is 0. So what is delta phi? Delta phi is equal to, you can see ये टर्म 0 हो जाएगा बच्चों. So this is equal to 2 pi. यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि इसके और इसके बीच में पाथ डिफरेंस 0. और जब इसके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा बच्चों, तो दोनों इन फेज है. सो जब दोनों इन फेज होगा, अच्छा यहाँ पर डेल्टा x 0 है बच्चों. सो डेल्टा फाई विल बी ऑल्सो 0, नॉट 2 पाई. दिस इज 0 ओनली, राइट. यू सी दिस इज delta x by lambda. Delta x is 0, so delta phi is 0 degree. So phase difference between
the two wavelets which are going from A and B is 0. So how they will be added? They are added constructively. So इस तरह से ये add हो जाएगा. So this is the resultant due to this two wavelet. So they are added constructively. यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों, the two wavelets from A and B point oscillate AB reach at point O and there is zero phase difference between them, they added constructively and produce central maxima. Constructively add हुआ बच्चों, दोनों पेज में है, added constructively and produce maxima produce करेगा, that is fine. और यहाँ पर bright fringe का formation होगा, intensity maximum होगा. So bright fringe intensity maximum होगी, intensity proportional to square of amplitude. So यहाँ पर बच्चों intensity क्या होगा? maximum होगा. Intensity will be maximum, that is fine. And there will be formation of bright fringe. Takes place. Formation of bright fringe. यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा. बच्चों अगेन यहाँ पर देखिए, अगर हम ये पूरे स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, AC और CB में, सपोज वी डिवाइडेड दिस स्लिट AB इनटू टू पार्ट, या आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर रहे हैं. सो सपोज वी डिवाइडेड द स्लिट AB इन टू पार्ट्स. नाउ दैट पॉइंट वी आर कॉलिंग एज C. सो अगर हम AC पार्ट में बच्चों कोई एक पॉइंट कंसीडर करें, तो इसके करस्पॉन्डिंग, इसको थोड़ी देर के लिए बिता रहे हैं, अगर यहां पर हम कोई पॉइंट कंसीडर करें तो इसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां पर भी होगा बच्चों CB पार्ट में. अगर यहां से हम लाइट रे भेज रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, सो बच्चों यहां पर A पॉइंट से जाने वाला जो वेवलेट O पॉइंट पर है और B से जाने वाला जो पॉइंट वेवलेट O पॉइंट पर है, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या है? 0. So how they are going to be added up? So delta x path difference is 0 between the wavelets which are going from point A and B through this length to the point O is 0. So delta x is 0. So what is delta phi? Phase difference. This is also 0. So how they are going to be added up? दोनों वेव बच्चों इन फेज है. So यहाँ से जो वेवलेट गया और ये जो वेवलेट गया, दोनों का पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0. दोनों वेवलेट सेम फेज में O पॉइंट पर रीच करेगा. सो हाउ दे आर गोइंग टू बी एडेड अप? They are going to be added up constructively. और क्या फॉर्मेशन करेगा बच्चों? फॉर्मिंग मैक्सिमा at point O. फॉर्मिंग मैक्सिमा एट पॉइंट O. इंटेंसिटी क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा. इंटेंसिटी मैक्सिमम. सो यहां पर जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा बच्चों, तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा. यस और नो? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज. यहां से आगे बढ़ते बच्चों, अब इस स्लिट AB को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, AC और CB में, ये जो AB स्लिट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया,
AC और CB में। सो यहाँ से AC से अगर कोई एक पॉइंट कंसीडर करें और यहाँ से अगर हम वेवलेट को भेजें बच्चों, सेकेंडरी वेवलेट को थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल आल्सो मीट एट पॉइंट O। इसके करस्पॉन्डिंग CB पार्ट में भी एक पॉइंट होगा जहां से वेवलेट जो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस दे विल आल्सो मीट एट पॉइंट O, दे विल आल्सो मीट एट पॉइंट O। सो अगर हम इसे 1 और इसे 1 डैश मान ले बच्चों, तो यह जो वेवलेट है और यह जो वेवलेट है वो पॉइंट पर रीच हो रहा है 1 1 डैश। 1 डैश के लिए अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है, डेल्टा x इक्वल टू 0, सो फेज डिफरेंस इज 0। सो इस पॉइंट O पर दोनों वेवलेट जो 1 और 1 डैश पॉइंट से आ रहा है, स्लिट AB के 1 और 1 डैश पॉइंट से आ रहा है, they are also in phase, they are reaching at point O in same phase, 0 phase difference, this is 0 phase difference. So how they are going to be added up? They are added up constructively, they are added up constructively, and what does it form? Forming maxima, forming maxima at point O, and again intensity maximum होगा बच्चों, intensity क्या होगा, maximum होगा, intensity will be maximum. So again formation of bright fringe, formation of bright fringe। बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें अगेन, अगर हम कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करें यहाँ पे 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट होगा 2 डैश। यहाँ से आने वाला वेवलेट और यहाँ से आने वाला वेवलेट, यह दोनों वेवलेट O पॉइंट पर जब रीच करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस लेंस, पाथ डिफरेंस फिर से 0, डेल्टा x 0, डेल्टा phi 0, they will be added up at point O constructively and forming maxima और central maxima at point O। सो ओवरऑल अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो स्लिट AB है, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, तो किसी दो पॉइंट को अगर हम कंसीडर करें, वन पॉइंट फ्रॉम AC पार्ट एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट इन CB पार्ट, तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 होगा। किसी दो वेवलेट्स को एट ए टाइम कंसीडर करें बच्चों, AC और उसके करस्पॉन्डिंग CB पार्ट से, तो वो दोनों वेवलेट O पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिवली एडेड अप हो रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग central maxima at this point. There is a formation of central maxima at this point. So यहाँ पर एक point note करते हैं बच्चों, all the secondary wavelets which are at 0 degree angle passing through converging lens meet at point O. They are added at point O constructively and forming central maxima. So this is general point we are writing as note. So all those secondary wavelets which are diffracted at theta equal to 0 degree with respect to horizontal, after passing through lens L2, they meet at point O in same phase and therefore they are added up constructively, forming central maximum, and at this point
वंस द सेंट्रल मैक्सिमम विल बी फॉर्म्ड, यहाँ पर बच्चों जैसे ही सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मेशन होगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, सारे वेव जो है सेकेंडरी वेवलेट्स जो है वो एडेड अप हो जाएगा और इन फेज एडेड अप होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। रिजल्टिंग वेव जो होगा उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी जब मैक्सिमम होगा बच्चों तो व्हाट विल बी फॉर्म्ड? फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज विल टेक्स प्लेस। सो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, सो फॉर्मेशन ऑफ bright fringe takes place. Formation of bright fringe takes place. So this is how we consider or we understand. This is how we understand the concept of central maximum or formation of central maximum. बच्चों आप इस वीडियो में इतने ही कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको सिखाया है, इतने ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लर्न करिए, प्रॉपरली रिटेन करिए और रिवाइज करिए, इसको रिपीटेडली वीडियो को वॉच करिए। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिफ्रैक्शन का मैंने इससे पहले जो भी वीडियो बनाया है आप उसको भी वॉच करके इसको वॉच करिए। इससे आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एट थीटा इक्वल टू θ1, θ2, θ3 डिफरेंट एंगल पर जब डिफ्रैक्शन होगा तो उन केसेस को भी डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है उसको डिराइव करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।